हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 47 के प्रॉब्लम्स। तो एक एक करके प्रॉब्लम देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है फाइंड नियरेस्ट पॉइंट दैट हैज द सेम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। So you are given two integer x comma y which represent your current location in a Cartesian grid, and you are also given an integer points. Integer you are given an array of points where each point of I represents ai comma bi, um, which represents the position in Cartesian plane where x coordinate is ai and y coordinate is bi. So a point is valid if it share the same x coordinate or the same y coordinate with your location. So we have to return the uh, index of valid point uh, which has smallest Manhattan distance from your current location. So like if there is multiple answer with the minimum distance, so we have to return the smallest index. If there is no point, valid point, return -1, and Manhattan distance is for 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2 is absolute of x1 minus y1 plus absolute of y1 minus y2. So for this example, like x1 is 3 or y1 is y is 4. This is our positions. My current position is 3 comma 4 in Cartesian plane, and points are given as 1 comma 2, 3 comma 1, 2 comma 4, 2 comma 3, and 4 comma 4. So out of these 5 points, only these 3 are valid. Why? Because this one, for this one x is same, for this one y is same, for this one y is same. So either x or y should be same with your current location. And out of these 3, this 4 this one 2 comma 4 has the minimum Manhattan distance. What will be the Manhattan distance? 3 minus 2 1, or 4 minus 4 is 0. So 1 is the minimum Manhattan distance. So that's why we are returning 2 as the output. So for example, if like my current position will be 3 comma 4 and points are given as 2 comma 4, 6 comma 8, 3 comma 9, 3 comma 4, or 9 comma 4, or 7 comma 8. So out of this one is not a valid point because, okay, sorry, this one is a valid point because it's here common y. This one is not a valid point. This one is a valid point. This one is a valid point. This one is also a valid point, but this one is not a valid point because it doesn't share any x or y, common x or y. So out of this, it has Manhattan distance of 1. It has Manhattan distance of 5. 9 minus 4, that is 5. It has Manhattan distance of 0, and it has Manhattan distance of 6. So out of all this one is minimum. So we will print index of this, like what will be the index? 0, 1, 2, 3. So we will return 3 as the output. So easy question. So let's start code directly. So current min barabar 1 is 6. I'm taking current min, like uh, let's consider current min distance is 1 is 6. So any distance which is less than this will consider as a distance, right? So this one, and current index is -1. Taking index as -1, if I got any, if I get no valid point, so we have to return -1. So initializing id with -1, and at the end I will return id. So we start a for loop.
So I equals to 0 to point dot size if points of I comma 0 double equals to x, then we have to do some operation calculation. Otherwise, if point of I comma 0 double equals to y, then sorry 1 equals to y, then I have to perform some operation. And what will be that operation? I will calculate distance of this point from my current position. That should be equals to if x is equals to like x is equals to my current position, so this part will be the 0, so I calculate only this part. Same goes with y. If y is equal, then I will calculate only this part. So that will be points of I comma 1 minus 5. If this distance is greater than, sorry, less than current min, then I will update my current min, and my id will be the current index, which is I. Same I will do in this part. Instead of I will calculate distance from x. Everything will be the same. Oh, this is points. Okay, here it will be points. 20 minus 1, so I have to submit. So this is accepted. Let's go with the second question. Let's reset code. So we are given an integer n. Return true if it is possible to represent n as a sum of distinct power of 3. So I have to represent as a sum of distinct power. Distinct power means each power should be different. So if 12 is given, I will return true because 12 can be represented as 3 to the power 1 plus 3 to the power 2, which is equals to 3 plus 9. Same goes with 91. 91 can be represented as 3 to the power 0 plus 3 to the power 2 plus 3 to the power 4, uh, which is equals to 1 plus 9 plus 81. We can't represent 21 as a sum of power of 3 where each power is distinct. So like if I have 21 and distinct power is allowed, so I can write as 9 plus 9 plus 3, but as distinct power is required, I can't use 9 two times. So 21 can be represented as can't be represented as 3 की power because at least 2 times 9 is required to represent 21. So so we can't represent 21 as a power of 3. So basic idea is to solve this problem is whatever is my current number, let whatever is my current number n, let's say n, so subtract is the nearest smallest power of 3. Let's say if I have 115, then I will subtract this with 81 because this is the best possible solution, best possible number to subtract. If let's say I have 300, then I will subtract it by 243 and then perform rest of the operation. So in this way we can solve this problem. Like
after subtracting from the power, if I am able to reach the n equals to 0, then this is possible, otherwise it is not possible. Solve this problem. What I can do, I can pre-compute power of 3. So as n is 10 की power 7 and 3 की power 16, it is 3 की power 16 is greater than 10 की power 7. So I will take an array which in which I will compute 3 की power 16 already. So I have to compute 3 की power 16, so I'm taking size of 17. Okay. तो फिर मैं यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ कि बेस केस हो गया कि पावर ऑफ 0 1 हो, थ्री थ्री की पावर 0 1 होता है। फिर एक फोर लूप चलाता हूँ, 1 से आई प्लस प्लस हो गया, सॉरी ऑफ आई जो होगा वो 3 टाइम्स होगा पावर ऑफ आई माइनस 1 के। तो ऐसे हमने पावर कैलकुलेट कर लिया। अब एक फोर लूप चला लेते हैं इक्वल्स टू 16 से 0 तक का। अगर मेरा करंट नंबर बड़ा है या इक्वल है पावर ऑफ आई से, तो मैं एन में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पावर ऑफ आई, अदरवाइज कुछ नहीं करूँगा। जैसे छोटे वाले के लिए सर्च करूँगा, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे एन इक्वल टू 0। अगर एन 0 के बराबर होगा तो ट्रू, ना फॉल्स। कुछ तो गड़बड़ किया है। ओके, यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स, तो अब सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड है। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल सबस्ट्रिंग। तो द ब्यूटी ऑफ सबस्ट्रिंग इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड लेस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ए बी ए सी सी, फॉर दिस स्ट्रिंग आंसर इज 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ऐसा क्यों? क्योंकि ए की फ्रिक्वेंसी है 3, बी की फ्रिक्वेंसी 1 और सी की फ्रिक्वेंसी 2। तो मोस्ट फ्रिक्वेंस हो गया 3 और लीस्ट फ्रिक्वेंस हो गया 1। तो 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमें एक सबस्ट्रिंग दे, सॉरी हमें एक स्ट्रिंग एस दिया होगा और हमें सम ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल ऑफ इट्स सबस्ट्रिंग बताना है। तो जितने भी सबस्ट्रिंग होंगे उसकी जो भी ब्यूटी होगी वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो ए बी बी ए बी सी बी, तो ए ए, ए हमारा जो अगला वो दिया हुआ है, ट्राई करते हैं। ए ए ई बी सी, ये सारे सबस्ट्रिंग क्या होंगे? लेट कंसिडर ए ए ए बी ए ए बी सी ए ए बी बी सी। ठीक है, फिर होगा ए बी सी ए बी सी सी, होगा ई सी बी बी सी बी सी, एक होगा सी, लास्ट में सी। और यहाँ पे आई गेस ए मिस हो गया। तो इसके लिए तो आंसर मैक्स और मिन दोनों 1 है, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। के लिए भी 2 - 2 दैट इज 0। इसके लिए 2 - 1 दैट इज 1। इसके लिए 2 - 1
दैट इज़ 1 के लिए 2 माइनस 1 इज़ 1 के लिए 1 माइनस 1 दैट इज़ 0 1 माइनस 1 दैट इज़ 0 के लिए 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 इसके लिए 1 माइनस 1 दैट इज़ 0 1 माइनस 1 दैट इज़ 1 minus 1 that is 0 2 minus 1 1 only 1 minus 1 that is 0 2 minus 2 that is 0 1 minus 1 that is 0 बेसिकली आंसर कितना हो गया 1 2 3 4 और 5 ए बी सी सी के लिए आंसर होगा 5 ओके थोड़ा अलग था बट आई गेस इसका भी 5 ही आएगा हाँ तो हम इस तरह से पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं तो बेसिकली यहाँ पे एन हमको 500 दिया हुआ था तो 500 का मतलब हो गया कि हम एन स्क्वायर की लूप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हैं तो लेट्स से कि अगर हमारा एन बराबर एस डॉट लेंथ है तो हम एक लूप चलाते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस और एक फोर लूप चलाते हैं तो इसके थ्रू हम सारे सबस्ट्रिंग कैलकुलेट कर सकते हैं तो बेसिकली हम क्या कर लेते हैं कि हर उसके लिए एक फ्रिक्वेंसी एरे मेंटेन कर लेते हैं क्योंकि जो ऐसे सिर्फ ओनली लोअर के लोअर इंग्लिश लेटर को रखेगा तो बेसिक कैरेक्टर्स होंगे एक फ्रिक्वेंसी एरे रख लेते हैं 26 का अब हर सबस्ट्रिंग के लिए कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही तो उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर लेंगे प्लस प्लस किया ओके अब जैसे कि मैक्सिमम वाली फ्रिक्वेंसी है -1 और इंट मिनिमम वाली फ्रिक्वेंसी है ये 500 है तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 1000 से ज़्यादा तो बड़ी हो नहीं सकती मिनिमम फ्रिक्वेंसी तो एक बार हम अपने फ्रिक्वेंसी वाले एरे में इटरेट कर लेते हैं पूरा अगर मेरा फ्रिक्वेंसी वाला नंबर क्या बोलते हैं 0 नहीं है तो मैक्सी को अपडेट कर लेते हैं सेम मिनिमम को भी अपडेट कर लेते हैं और ये हो गया ठीक है मैंने मैक्सी और मिनिमी दोनों को अपडेट कर दिया अब जो काउंट एक वेरिएबल ले लेते हैं वो होगा मैक्सी माइनस मिनिम के बराबर और हमारा काउंट होगा यहाँ पे 0 ठीक है तो लास्ट में हम काउंट रिटर्न कर देंगे 5 ही आया 5 और 17 सबमिट करके देखते हैं तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस प्रॉब्लम के लिए एक एंड का लूप बाहर चल रहा है एक ये एंड का लूप चल रहा है और एक ये 26 का लूप चल रहा है तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तो हो जाएगी अपनी एन स्क्वायर इंटू 26 और अगर स्पेस की बात करें तो हम ऑफ 26 का ही एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं कि डायनेमिक बनाया है तो हर लूप के बाद दोबारा से आ जाए
एक लूप के बाद क्या बोलते हैं वो दोबारा से यूज़ नहीं होगा। एक हम यहाँ पे इस लूप के बाद अगर हम डिलीट भी कर देंगे तो आई गेस चल जाना चाहिए। तो एक इटरेशन में सिर्फ 26 सही एरे यूज़ हो रहा है, ये नहीं कि n×26 नहीं होगा। तो हम यहाँ से डिलीट करके इसका स्पेस बचा सकते हैं। और सबमिट कर देते हैं, डिलीट के साथ भी सबमिट कर दिया। तो टाइम विल बी 26 स्क्वायर, और जो स्पेस होगा वो ऑफ 26 होगा। कांस्टेंट भी बोल सकते हैं बट ठीक है। ठीक है, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था, मतलब एबीसी तो इजी थे आज की कॉन्टेस्ट के। तो हाँ, इस प्रॉब्लम में हमें क्या किया हुआ दिया हुआ है कि हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है ऑफ इंटीजर एन, लाइक, और क्या बोलते हैं हमें नंबर ऑफ नोट्स जो कि रिप्रेजेंट करिए नंबर ऑफ नोट्स को, और एजेस का एक वेक्टर दिया हुआ है जिसमें एजेस ऑफ आई टू यू आई कॉमा वी आई है, विच रिप्रेजेंट्स की यू आई और वी आई के बीच में एक एज है, और हमें कुछ क्वेरीज दे रखी हैं। तो बेसिकली इस क्वेरी में हमने को ये बताना है कि ऐसे कितने पेयर ऑफ वर्टिसेस होंगे जिनमें जिनके क्या बोलते हैं, इनका काउंट क्या बोलते हैं, काउंट क्या बोलते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्वेरी ऑफ जे होगा, वेयर काउंट इज नंबर ऑफ एज इंसिडेंट टू ए और बी। तो इसको थोड़ा इस एग्जांपल के से समझते हैं हम लोग। तो लेट्स से कि जो हमारा ये ग्राफ था, उसमें था 1 से 2 एक ग्राफ था, फिर 3 एक ग्राफ था, एच था, हाँ 2 से 4 और 1 से 3, 2 से 4 एक ग्राफ था, और 1 से 3 एक था, और ये भी एक था। तो बेसिकली अगर मैं सारे पेयर की बात करूँ तो ये होंगे 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 और 2,5। तो टोटल कितने ऐसे एज होंगे जिनमें जिनका पार्ट या इधर 1 हो या 2 हो। तो बेसिकली क्या होगा कि हम 1 की इन डिग्री देख लेंगे, सॉरी 1 की डिग्री देख लेंगे। तो लाइक ये वाला एज है, ये वाला एज है, और ये वाला एज है जिसमें 1 पार्ट है। तो ये हो गया 3। और अब 2 के लिए देख लेते हैं। अब 1, 2, 3, 4, है ना, बट आइदर होना चाहिए एंड नहीं। तो ये 1, 2 वाले ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5। वैसे अब 1, 3 के लिए देख लेते हैं। 1, 2, 3, 1 जिसका पार्ट है और 3 है 1, 2। तो 3 + 2, बट कॉमन वाला पार्ट हटाना है, -1। तो दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और 1,4 के लिए देख लेते हैं। इसके लिए हो गए 1, 2, 3, और 4 के लिए सिर्फ एक। तो 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना। 2,3 के लिए देख लेते हैं। तो वही 2, 3, 4, 2 का तो 4 हो गया, और 3 के लिए हो गया 1, 2, बट एक कॉमन है तो माइनस भी करना है, सॉरी। तो इज इक्वल्स टू 5। दो 2 और 4 का देख लेते हैं। 2, 3, 4, 4 और 1, 4 + 1 - 1, 4। तो 3,4 होगा।
3,4 के लिए हो गया, 3 का हो गया 2, 4 का हो गया 1, ऐसा कुछ ये बनेगा। तो ऐसा ही कुछ बन रहा है। अब क्वेरी आए 2, तो मुझे बताना है कि टोटल पेयर जिनका काउंट 2 से ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6, दैट्स वाई आंसर इज 6। अब 3 से ज़्यादा वाला बताना है, तो इसको हटा के सारा ही होगा, 1 2 3 4 5, तो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो गया, हाँ 5 हो गया। तो बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी। तो कंटिन्यू करते हैं। तो आई गेस आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, तो लेट्स थिंक कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ तो है कि क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है कि पहले तो हम सारे नंबर वर्टिसेस की डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ हमें और वो करना है ये सब्ट्रैक्शन पार्ट के लिए, कि किसी भी दो एच की वर्टिसेस के बीच में अगर कोई एच है, तो हमें उस एच का काउंट भी स्टोर करना है। तो पहला मेजर मोटो तो अपना ये है क्वेश्चन में। अब कुछ चीज़ें और दी गई है, जैसे कि इसमें क्वेरी सिर्फ 20 होंगी, ठीक है। और जो एन है वो 10⁴ 2 × 10⁴ हो सकता है, और जो एज हैं वो क्या बोलते हैं 10⁵ तक हो सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रिपीटेड एजेस भी हो सकते हैं, मतलब जैसे ये देख रहे हैं वाले एग्जांपल पे 1,5 1,5, तो ये रिपीटेड एजेस हैं। तो जो अपना पहला मेजर मोड होता, पहले तो हम डिग्री भी स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए एक वेक्टर ले लेते हैं इनका, में हम डिग्री स्टोर करेंगे, जैसे कि n+1 साइज़ के ले लेते हैं और 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। और एक मैप ले लेते हैं, मैप ऑफ पेयर ऑफ int, int int m। बेसिकली ये मैप हम लोगों को बताएगा कि क्या बोलते हैं, कि किसी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में कितने एजेस हैं, तो हम लोग ये स्टोर करेंगे। तो फॉर तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके एजेस में जाते हैं, ठीक है। अब डिग्री ऑफ I0 प्लस प्लस डिग्री ऑफ I1 प्लस प्लस, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल था। अब एक काम करते हैं, सेव करने के लिए हम निकाल लेते हैं, तो फिर डायरेक्टली ऐसा कर लेते हैं, एम ऑफ min ऑफ I, 0, I1, ये हो गया एक, और एक हो गया मैक्स ऑफ दिस सेम। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। ये मिन और मैक्स का ऐसा किया क्योंकि लेट्स से कि अगर एक एज ए 2,1 और एक है 1,2, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, बाई डायरेक्शनल। तो अब अब इस प्रॉब्लम में हम लोगों को लेट्स से कि BC दे रखे हैं, क्या बोलते हैं क्वेरी। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमको 20 क्वेरी दे रखा है और हमें बताना है कि क्या बोलते हैं किस तरीके से हो सकता है ये। तो देखो, एक तो नॉर्मल आइडिया क्या था कि हम मैं n² का लूप चला दूँ, ठीक है। हाँ, अगर जैसे कि मैंने n² का लूप चलाया और हर नंबर के लिए मैंने कैलकुलेट कर लिया कि उसका क्या क्या नंबर आ रहा है, जैसे कि n² के लूप से मैंने सारे पेयर ले लिए और क्या बोलते हैं उनकी कैलकुलेशन कर ली कि 1,2 का इतना आ रहा है, 2,3 का इतना आ रहा है,
ठीक है, जैसे कि 1, जनरलाइज कर लेते हैं, 1, 2 हो गया, 1, 3, 1, 4, और फिर 2, 3, 2, 4, 3, 4, इन सब की कैलकुलेशन कर ली n = 3 के लिए। ठीक है, लेट्स से कि इसका 2 आ रहा है, 3, 4, 5, 2, 4, ऐसा कुछ आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि अपना एक अलग से एक एरे बनाऊँगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो ये एरे बनाया है, अगर 2 है तो क्या बोलते हैं, 2 पे +1 कर दूंगा, 3 पे +1, 4 पे +1, 5 पे +1, 2 पे +1, और फिर 4 पे +1। ठीक है, फिर इसका एक प्रीफिक्स सम ले लूँगा, तो बेसिकली ये बता देगा 0, 0, 2। फिर पीछे से लूँगा क्योंकि मुझे जानना है कि 2 से बड़े कितने हैं। तो 6 से बड़ा 0, 1, 3, 4, 4 और 2 6, 6 और 6। तो अगर कल को कोई मुझसे बोलता है कि भाई 3 से बड़े वाले बता दो, 3 से बड़े का मतलब क्या हो गया, 4, जो 4 का आंसर होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से उठा के आंसर दे दूंगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस अप्रोच की ये कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन ले रही है आपके टाइम n², और n दे रखा है आपका 2 × 10⁴। तो यहाँ पे ये चला जाएगा 2 × 10⁴ का होल स्क्वायर, दैट इज 4 × 10⁸। ऊपर से जो मैप में सर्चिंग करना होगा पेयर की सब्ट्रैक्शन का, वो भी log n है, तो वो भी ले लो, तो log ऑफ 2 × 10⁴ भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये अप्रोच तो हो गई फेल। अब क्या है कि अब इसमें करने वाली चीज़ें क्या है कि पूछना जिस तरीके से था, क्वेरी सिर्फ 20 दे रखी है, तो अगर हमें 20 क्वेरी दे रखी है तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि मैं हर क्वेरी के लिए कुछ आंसर निकालूं, कि इस क्वेरी के लिए आंसर है। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं इसको रिड्यूस कर पाऊँ, Q × n या फिर Q × n+समथिंग, तो इस तरह से करना था। तो हाँ, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई n n = 50 के लिए आंसर बता दो, सॉरी 5 के लिए बता दो, ये 5 से बड़े वाले बताओ। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मेरी किसी एरे की फ्रिक्वेंसी आती 1, 2, 3, 4, 7, 9, लेट्स से कि सॉर्टेड ऑर्डर में, इन डिग्री हमने जो कैलकुलेट की है वो ये 2 नंबर्स को ही तो उठा के करना है। तो लेट्स से कि ये मेरी इन डिग्री का सॉर्टेड वर्जन है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि भाई वो सारे ऑल पेयर विद सम ग्रेटर देन x। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ कि एक पॉइंटर रख दे यहाँ पे और एक पॉइंटर रख दे यहाँ पे। अब 1 + 9 कितना है, 10। अगर 1 + 9 10 है तो इसका मतलब 5 तो अचीवेबल नहीं है, मतलब मुझे 5 तक आना है। तो अगला हो गया ये 7 पे आया, इसको घटाया, जे माइनस माइनस किया, आई तो जे बोलते, अभी भी 8 है, नहीं हो सकता, यहाँ पे आए। अब ये आ गया 5, मुझे तो 5 से बड़ा चाहिए। तो अगर मैं 1 का एडिशन इन दोनों के साथ करूँ तो चलेगा, है ना। तो ये दोनों मेरे एक पॉसिबल आंसर है। तो अगर मेरा टोटल साइज n था तो n माइनस जे -1, इतने पेयर मेरे हो गए जो 1 के साथ आ सकते। अब मैं
अब ये इक्वल हो गया है तो अपना आई बढ़ाता हूँ। अब आई मेरा यहाँ पे आ गया। अगर आई मेरा यहाँ पे आ गया तो जे यहाँ पे है, तो इन दोनों का एडिशन 6 हो गया है। तो इसको करना पड़ेगा कम। तो इसको कम करके लेट्स से कि हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो दो के करस्पॉन्डिंग कितना नंबर बन गए? लेट्स से कि इसके करस्पॉन्डिंग दो बने थे, वन के करस्पॉन्डिंग दो नंबर बने, दो के करस्पॉन्डिंग बन गए ये तीन नंबर। ठीक है, अब मुझे तीन के लिए जानना है, क्योंकि इसके लिए तो हो गया है। अब इंक्रीमेंट किया। अब इंक्रीमेंट करने के बाद ये आ गया, जे को डिक्रीमेंट करेंगे क्योंकि तीन और तीन छः हो रहा है। जे को डिक्रीमेंट करके यहाँ पे लेके आए जे को। ठीक है, तो अब ये पाँच हो गया, तो कम हो गया है। तो अब इस जे के लिए तो कोरस्पॉन्डिंग आंसर हो जाने चाहिए थे एक्चुअल में ये चार, अगर हमारी कैलकुलेशन करें तो। बट क्या है कि अ, ये वाले पेयर रिपीट हो रहे हैं। जैसे टू टू है, ये रिपीट हो रहा होगा, थ्री थ्री वाला रिपीट हो रहा होगा। तो जब भी ये टू टाइम्स ऑफ अपना ये नंबर ऑफ आई ये बड़ा हो रहा है, ये थ्री बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक फ्रिक्वेंसी हमें कम करनी पड़ेगी। तो चार माइनस एक तीन, इसके लिए भी एलिजिबल तीन हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग ना ऑल पेयर निकाल सकते हैं ऑफ एन में। ऑफ एन क्यों? क्योंकि ये तब तक चलेगा जब तक आई हमारा एन तक ना हो जाए। ठीक है, बेसिकली टू ऑफ टू एन होगा, क्योंकि ये एन माइनस वन से ज़ीरो पे जा रहा है, और आई क्या बोलते हैं, ज़ीरो से एन तक जा रहा है। तो टू इंटू एन होगा, बट बिग ऑफ में हम ऑफ एन बोलेंगे। तो इससे तो मुझे सारे पेयर मिल जाएंगे, लेकिन हर पेयर ना दो बार आ रहा होगा। तो जब हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम काउंट डिवाइड बाई टू भी कर देंगे, तो इससे हमें मिल जाएंगे ऑल पेयर। लाइक हमें ये कंडीशन दे रखी है ना क्वेश्चन में कि बी शुड बी ग्रेटर देन ए। जब मैं कोई पेयर काउंट कर रहा हूँ तो रिपीटेड वाले कैरेक्टर नहीं करने। तो हर चीज़ ट्वाइस आ रहा होगा, तो लाइक दो कमा एक आ रहा होगा, तो एक कमा दो भी आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे अपना काउंट। अब ये तो हो गया ये वाला चीज़। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो डिग्री आ रही थी अपनी, हमने के से बड़ी कैलकुलेट कर ली सारी। बट अभी भी एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये हो सकता है डिग्री ऑफ आई प्लस डिग्री ऑफ जे, और हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे एजेस ऑफ आई कमा जे, मतलब नंबर ऑफ एजेस ऑफ आई कमा जे। तो ये वाला पार्ट तो हमने यहाँ पे किया ही नहीं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक अलग से फॉर लूप चला लेंगे ऑफ ई का। ठीक है, सारे एजेस के लिए चेक करेंगे। ठीक है, अगर उन दोनों एजेस का जो ये वाला कैलकुलेशन है, डिग्री वाला कैलकुलेशन, वो अगर मेरे काउंट से बड़ा आता है, और ये वाली कैलकुलेशन लाइक ये वाला 100, अगर ये वाली कैलकुलेशन मेरी आई जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है उससे बड़ी आती है, बट ये वाली जो ओवरऑल कैलकुलेशन है, अ, ये वाली कैलकुलेशन पूरी, ये अगर मेरी क्या बोलते हैं उससे छोटी आती है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट मुझे काउंट नहीं करना था, जो मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका था, तो ये वाला पार्ट मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो बेसिकली एक ऑफ एन का लूप चलेगा, और एक ऑफ ई का अलग सा लूप चलेगा हर क्वेरी के लिए। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, क्यू इंटू एन प्लस ई, और क्यू 20 है, और एन 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 5 ले लेते हैं। 2 इंटू 10 की पावर 6 टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे, जो कि 10 की पावर 8 से काफ़ी कम है। तो ये कोड आराम से चलेगा।
तो एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो हम लोगों ने डिग्री पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। अब हर क्वेरी के लिए जाते हैं। जैसे कि के है हमारी क्वेरीज का नंबर। ठीक है। उससे पहले मुझे अपने डिग्रीज को शॉर्ट भी करना है। तो मैं एक ले लेता हूँ, रेप्लिका ले लेता हूँ। सॉर्टेड होगा मेरा डिग्री के बराबर ही। अब मैं सॉर्ट कर देता हूँ डिग्री वाले को, सॉरी सॉर्टेड को, मतलब किसी को भी कर लीजिए, रेप्लिका है एक दूसरे की। यहाँ पे हमने सॉर्ट को कर दिया। अब यहाँ पे मेरा इंट, एक फोर लूप चला लेते हैं। फोर इंट आई इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है ना। एक बाहर अपना जे है, की वैल्यू अभी एन है। ओके। यहाँ पे सारी वैल्यू क्या बोलते हैं, वन से एन के बीच ले लिया हुआ है। तो लूप हम चलाते हैं एन तक का, ए की वैल्यू भी एन होगा। ठीक है। तो जब तक सॉर्टेड ऑफ आई प्लस सॉर्टेड ऑफ जे हमारी क्वेरी वाली वैल्यू से बड़ी है, तब तक हम क्या करेंगे, जे को माइनस करते रहेंगे। और एक और कंडीशन कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो भी होना चाहिए। वन से एन तक का लूप चल रहा है ना, डेट्स फाइव। ठीक है ना। अगर ये हो गया तो काउंट में हम प्लस कर देंगे एन माइनस ए। इतने नंबर काउंट होंगे आई के लिए होंगे। बट एक चीज़ और है कि अगर सॉर्टेड ऑफ आई का ट्वाइस अगर बड़ा है हमारे क्या बोलते हैं के से, तो ये काउंट हमको कम करना पड़ेगा हर बार। ठीक है। लास्ट में हम काउंट को क्या करेंगे, डिवाइड बाई टू कर देंगे, क्योंकि हर पेयर क्या बोलते हैं दो बार भरा होगा, वन टू या फिर टू कोमा वन वाला पार्ट। यहाँ पे हम लोगों ने काउंट को जीरो किया है। ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया। अब सारे एजेस में जाएंगे। तो हम एजेस, ठीक है। अब सारी एजेस में जाएंगे। मैप में हम लोगों ने रख रखे हैं ना सारे एजेस। एक काम करते हैं, मैप के सारे उसमें जाते हैं, क्योंकि उसमें काउंट पड़ा हुआ है सारे एजेस का। है ना। जैसे कि पॉइंट हमारा बता रहा है आई डॉट फर्स्ट, और वो पॉइंट कितनी बार आया, वो हो गया आई डॉट सेकेंड। लाइक ये एच कितनी बार आया, आई को मजे वाला। ठीक है ना। अगर डिग्री ऑफ, जैसे कि पहले कैलकुलेट, एक्स बराबर हो जाएगा पॉइंट कोमा फर्स्ट, और इंट वाई बराबर हो जाएगा पॉइंट सेकेंड। मतलब हमें दोनों एजेस मिल गए। अब डिग्री ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ वाई पहले बड़ा था अपने के से, बट पोस्ट दिस सब्ट्रैक्शन डिग्री ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ वाई माइनस एफ आर ई, ये जो चीज़ है अब के से छोटी है, इक्वल हो गई है। तो ये कैलिक्युल वो नहीं है, तो हमें काउंट कम करना पड़ेगा। तो फाइनली ये अपना वो होगा काउंट फॉर दिस क्वेरी
तो यहाँ पे हम काउंट को प्लस कर पुश बैक कर देंगे, एक वेक्टर लेके जो आंसर को स्टोर कर रहा है। यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देते हैं आंसर। चेक कर लेते हैं, 6,5 ही आ रहा है। 10, 10, 9, 8, 6 सही लग रहा है। सबमिट करके देखते हैं, तो एक्सेप्टेड भी हो रहा है। तो थोड़ा बड़ा था तो एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। तो बेसिकली क्या है कि इस प्रॉब्लम में सॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया कि हमने, अगर हमारे पास कोई एज दे रखी है, तो हमने सबकी डिग्री कैलकुलेट कर ली, ठीक है, और उनके बीच की फ्रिक्वेंसी। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेरी आ रही है, तो और वो क्वेरी बोल रहा है कि भाई वो सारे आंसर बताओ, वो सारे आंसर बताओ जिनका आंसर के से बड़ा आ रहा है। तो मैंने पहले तो डिग्री पहले सॉर्टेड कर दी। जैसे कि मान लो कि इसके लिए डिग्री आ रहा था 3, फिर किसी के लिए 4, किसी के लिए 9, किसी के लिए 10, किसी के लिए फिर 7, सॉरी 11। और इन्होंने बोला कि लेट्स से कि आंसर हमें वो ऑल काउंट ऑफ पेयर बताओ और जिनका हम क्या बोलते हैं 12 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो अपने को पता है कि सॉर्टेड है, तो हमने इन दोनों को पॉइंट रख दिए, I, और फिर अगर 3, 11 ये बड़ा है, ठीक है ना, तो हम लोअर बाउंड तक जाएंगे। तो आई गेस लोअर बाउंड ये होगा, हमें बड़ा चाहिए 12 से, तो ये 3 + 9 12 होगा। तो यहाँ तक है। तो अगर मैं 3 का एडिशन 10 और 11 से करूँगा तो ऑलवेज 12 से बड़ा मिलेगा। तो 3 के लिए ये वाला पार्ट आंसर का पार्ट हो जाएगा n-i, n-j। फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो आई को बढ़ाऊंगा मैं, फिर आई के लिए कैलकुलेशन करूँगा। तो आई के लिए हो गया 9, 10, 11, ठीक है ना। तो 9 को लेके आऊँगा तो ये बड़ा है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट के लिए हो जाएगा 9, 10, 11। तो अगर मैं सेम अगर जे को इधर लेके आऊँगा और आई बड़ा इधर होगा, तो इसमें क्या होगा कि एक फ्रिक्वेंसी एक्स्ट्रा ऐड हो रही होगी। तो इस वाले केस में जब 2 टाइम्स ऑफ ए ऑफ आई हमारा बड़ा हो अपने टारगेट से, मुझे एक फ्रिक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। तो इससे मुझे ऑल पेयर मिल जाएंगे, बट ऐसा होगा कि I, J और J, I ये दोनों ऐड हो रहे होंगे। तो सिर्फ मेरे को इसको एक बार कंसिडर करने के लिए फाइनल आंसर में से काउंट डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, मतलब 2 बार काउंट हो रहे हैं हर चीज़, तो मैं एक बार काउंट करूँगा। पोस्ट दैट क्या बोलते हैं, जितने भी पेयर्स थे ये तो मेरे ऑल पेयर आ गए। अब ये सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट की जो मेरे को हटाने थे सेम वाले, मतलब 2 से 3 एज है तो वो मुझे काउंट नहीं करने थे। तो उस चीज़ के लिए क्या किया कि सारे एजेस में गया मैं, देखा कि भाई पहले के आंसर के से बड़ा था, अगर के से बड़ा होगा तो यहाँ पे काउंट हो चुका होगा। और सब्ट्रैक्शन के बाद अगर के से छोटा हो जा रहा है या इक्वल हो जा रहा है, तो इस वाले पार्ट ये वाला पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट हो गया है, ठीक है ना। तो इसको मुझे अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ही बार इसलिए किया क्योंकि ये एक ही बार आ रहा होगा, क्योंकि मैं मिन ऑफ और मैक्स ले चुका था यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 बार करने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी Q इंटू N प्लस M हो जाएगा। M इज़ नंबर ऑफ एजेस, और या कम हो सकते हैं जैसा उसका फ्रिक्वेंसी होगा, ठीक है। बेसिकली एम डॉट साइज ई से तो छोटा ही होगा या ई के बराबर होगा। तो ओवरऑल के इंटू एन प्लस ई हो जाएगा। और के अपना क्या बोलते हैं, बी सी दे रखा था, मतलब क्वेरी का साइज। और एन 10⁴ था और ये 10⁵ था। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लाइक ई बड़ा है जनरली, तो एन इंटू ई हो जाएगा, सॉरी क्वेरी इंटू ई हो जाएगा। तो
ये 10 की पावर 6 के आसपास रहेगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बात करें तो स्पेस में एक 10 डिग्री वाला लिया हुआ है, एक डिग्री का एरे लिया हुआ है, एक सॉर्टेड का एरे लिया हुआ है और एक फाइनल आंसर का है। तो ओवरऑल लाइक ये क्या बोलते हैं, ऑफ एन से बड़ा नहीं होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन इंटू क्यू प्लस एम, सॉरी क्यू इंटू एन प्लस एम, और हेयर लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्स विल बी ऑफ एन। तो ये थे क्या बोलते हैं वाई वीकली कॉन्टेस्ट नंबर 47 के सारे सॉल्यूशन। होप आप सबको पसंद आए होंगे। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ग्रेड बाय चैनल। थैंक यू।